अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी एंड ब्रांचेस ऑफ अनाटमी और इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसकी तरह ये भी आज इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन अनाटमी एंड मीनिंग्स ऑफ अनाटमी, और अनाटमी कहाँ से जो है ना वर्ड बिलोंग करता है। ह्यूमन अनाटमी is created in very complicated manners. It is quite difficult to recognize the structure and function of the all organs of the body. Human body is composed of different systems. Each system is made up of the different organs. Similar, all organs involved in each system is differ in structure as well as in functions. First of all, it is necessary for students to understand anatomy, structure of the body. Just anatomy क्या है? Structure of the body. And the word anatomy come from the Greek word ana, meaning up, and tome mean cutting. Study of anatomy have traditionally depend on cutting up dissections, but now with imaging technology increasing possible to see how body is made up without dissections. Furthermore, following definitions, anatomy is the science of structure of the body. Anatomy is the identification and description of the structures of the living things. These definitions shows अनाटमी इंसानी जिस्म की साख्त मुतालिया का नाम है जो जिंदा जिस्म के बारे में है। Anatomy is the scientific study of the living organism and its structure, यानी कि अनाटमी इंसानी जान या इंसानी जिस्म और दीगर जो ज़िंदा रहने वाले अजसाम के साख्त उसके बारे में मालूमात फराहम करती है। एज ह्यूमन बॉडी इज़ द कंपोजिशन ऑफ वेरी सिस्टम्स, ऑल दीज सिस्टम्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। इंसानी जिस्म के अंदर 11 निज़ाम जो काम करते हैं, डिफरेंट उनके फंक्शन है, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है। How these systems working and how develop take place in functions of the all systems. Physiological is mainly concerned with the function and its developmental process. जबकि हम फिजियोलॉजी की तरफ देखते हैं तो तमाम फंक्शंस जो अफाज हमारे जिस्म के अंदर हैं, लाइक ये हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट, उसकी पंपिंग, तमाम वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर खून का जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस वेन्स के ज़रिए वापस आना और पूरी बॉडी को जो है ना ब्लड की सप्लाई करना। स्ट्रक्चर और फंक्शनली जो है ना टोटली ये डिफरेंट एक दूसरे के साथ तमाम आर्गन्स जो हैं वो जुड़े हुए काम करते हैं। It is a subject concerned with the functional and its developmental process of living organism. Anatomy is the science which deal with the function of the body organisms. Like this, these structures show anatomical position of the human body. Sternum है, mandible है, sternum है, ribs है, elm, clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, so on. यानी कि ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जस्ट इसको हम अनाटमी कहेंगे। जो ढांचा है उसके आगे जो कारकर्दगी जो अफाल्स हैं दूसरे सिस्टम से, चाहे बोन्स के मूवमेंट्स हैं, वो आल जो है फिजियोलॉजिकल हैंगे। नाउ anatomical term of movement in human body. Anatomical terms can be divided into the following categories. These are two categories. These terms related to movements and related to positions. First of all, जो टर्म्स हम डिस्कस आज करने लगे हैं उनमें से हैं, सबसे पहले जो हमारे टर्म्स है वो है फ्लेक्शन, उसके बाद फिर एक्सटेंशन, abduction, adductions, rotation, pronation of forearm, supination of forearm, circumductions, protraction, retraction, inversion, eversion, distal, proximal,
deep and superficial. Some terms related to movements, anatomical जो हम terms आज discuss कर रहे हैं, a site where two or more bone come together known as a joint, यानी कि दो या दो से ज्यादा हड्डियों का आपस जुड़ने के मकाम को जॉइंट जोड़ कहा जाता है. Some joints have no movement, ऐसे जॉइंट जिनके अंदर हरकत नहीं होती. लाइक स्क्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्यूल, हमारा सर जो है इसकी हड्डियां आपस में या इधर उधर हरकत बिल्कुल नहीं करती. सम जॉइंट हैव ओनली स्लाइट मूवमेंट, यानी कि हरकत एक साइड या एक तरफ हो या बहुत कम हरकत हो. मसलन सुपीरियर टिबियोफेबुलर जॉइंट. सम जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल, और कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो हमारे 360 डिग्री पे भी घूमते हैं. लाइक शोल्डर जॉइंट, जो हर तरफ मूव करते हैं, जो किसी भी एंगल पर मूव हो सकते हैं. ऐसे जॉइंट को सबसे पहले हमारी जो एनाटॉमिकल टर्म है हरकत से रिलेटेड मूवमेंट जो है, फ्लेक्शन, अ बेंडिंग मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इन अ लिम्ब एज द नी और एल्बो. ऐसी हरकत या अपने हाथ या पाँव को या एल्बो को या नी को क्या करते हैं हम, जॉइंट अराउंड द जॉइंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द बोन ऑफ द लिम्ब एट द जॉइंट, यानी कि किसी भी जोड़ पर हमारे लिम्ब का जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, कम होता है. मसलन ये लाइक दिस, ये पिक्चर शो दैट कि हमारा बाजू सबसे पहले जो सीधा बिल्कुल पाम नीचे है, फिर उसके बाद हमने ऊपर किया थोड़ा सा, एल्बो ऊपर आई, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और ऊपर किया. तो उसके बाद जो फोर्थ पिक्चर हमारी शो कर रही है कि ये फ्लेक्शन है. हमारा बाजू जो है, हमारा हाथ जो है, फोर आर्म जो है वो ऊपर की जानब, कंधे की जानब आ रहा है, तो ये फ्लेक्शन इसको हम कहेंगे. अब उसके बाद एक्सटेंशन, इट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन. ये फ्लेक्शन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत अपोजिट है उसके. एंड देयर इज एन इंक्रीज द एंगल ऑफ बोन, ये हड्डी के एंगल को बढ़ाता है. लाइक दिस, हमारी एल्बो और हमारी जो रेडियल शोल्डर और उस एल्बो जो है इस दौरान तनाव पैदा हो गया. ठीक है, एक्सटेंड किया गया. द एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग और एक्सटेंडिंग ऑफ फ्लेक्स्ड लैम्ब, जो हमारा फ्लेक्सिबल लैम्ब था उसके अंदर को हम एक्सटेंड किया. टाइटनेस उसके अंदर जो है ना पैदा हुई. स्ट्राइट abductions, it is a movement of a limb away from the midline of the body. It is a movement of a limb away from the midline, यानी कि हम अपने बाजू को बाहर की जानब जब फैलाते हैं तो अडक्शन होती है. इन द फिंगर एंड टोज, यानी कि हाथ की उंगलियां और पाँव, abduction is applied to the spreading of these structure. Like this picture show abductions. उसके बाद अडक्शन, अडक्शन मीन ऐड करना. अडक्शन से इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन्स ऑफ द बॉडी, किसी भी जिस्म की मिड लाइन की जानब हम अपने लिम्ब को, अज़ा को या उज़्व को अंदर की जानब लेकर जब आते हैं टुवर्ड द मिड लाइन, तो ये अडक्शन कहलाती है. इन द फिंगर एंड टो, अडक्शन इज अप्लाइड टू ड्रॉन दीज स्ट्रक्चर टुगेदर. नेक्स्ट एनाटॉमिकल टर्म जो हमारे पास वो है रोटेशन, गर्दशी हरकत. इट इज़ द टर्म अप्लाइड टू द मूवमेंट अ पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के गिर्द घूमने वाली हरकत को रोटेशन कहा जाता है. लाइक शोल्डर मूवमेंट जो है हमारी जो है वो जो राउंड के अंदर हम घुमाते हैं वो रोटेशन कहलाती है. मीडियल रोटेशन, एनाटॉमिकल टर्म है ये भी. टर्म medial is used to describe the closeness of the midline of the body. Picture show medial rotation. अगर बाजू को हम अपने नाफ यानी कि लोअर लिम्ब की जानब आगे बेली की जानब लेकर आते हैं तो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है हमारी, तो ये मीडियल रोटेशन होगी. मीडियल रोटेशन इज द मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट्स फेसिंग मीडियली. लेटरल रोटेशन, ये मीडियल के अपोजिट है.
टर्म रिलेटेड टू यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हम बाजुओं को जब बाहर की जाने फैलाते हैं तो ये लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट होगी। ये लेटरल रोटेशन इज द मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसिंग लेटरल। जब हमारे जिस्म के अज़ा जो है जो बाहर की जाने फैलते हैं तो ये लेटरल रोटेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। It is a medial rotation of the forearm such as manner that the palm of the hand face downward। जब हमारा हाथ उल्टा होगा तो हमारे बाजू के ऊपर जो है वो प्रोनेशन मूवमेंट होगी ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, जब हमारा हाथ उल्टे होंगे तो ये प्रोनेशन मूवमेंट होगी। अब इसके बाद सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म। इट इज लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म इन सच अ मैनर दैट द पाम ऑफ हैंड फेस अपवर्ड। जब हमारी हथेली ऊपर की जाने फोर आर्म जो है वो बिल्कुल सीधा होगा तो ये सुपिनेशन मूवमेंट कहलाएगी। सरकमडक्शन, सर्कल की जानिब यानी कि गुलाई की जानिब अपने बाजुओं को, हाथों को, टांगों को घुमाना सरकमडक्शन कहलाता है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द ऑल मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड सरकमडक्शन, जिसके अंदर हम फैलते भी हैं, फुलाते भी हैं, स्केड़ते भी हैं, डिक्रीज भी एंगल करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं, तो ये सरकमडक्शन मूवमेंट कहलाती है। प्रोट्रैक्शन, इट इज़ द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला जॉ। जब हम अपनी हरकत को या अपने बाजू को आगे की जाने मूव करते हैं, शोल्डर को, स्कैपुला को, तो ये प्रोट्रैक्शन मूवमेंट होती है। रिट्रैक्शन, इट इज़ द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। जब हम अपने कंधे को पीछे की जाने झटका लगाते हैं या पीछे की जाने मोड़ते हैं तो ये रिट्रैक्शन मूवमेंट कहलाती है। इन्वर्जन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट सो दैट द सोल फेस इन अ मीडियल डायरेक्शन। जब हम अपने पाँव की टो यानी कि पंजे को आगे की जानिब या बाहर की जानिब मोड़ते हैं तो इन्वर्जन मूवमेंट कहलाती है। पिक्चर शो दैट इन्वर्जन मूवमेंट। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जीएम को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन जॉब्स के हवाले से। इसके बाद है इनवर्जन मूवमेंट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट सो दैट द सोल फेस इज अ लेटरल डायरेक्शन। जब हम अपने सोल को बाहर की जानिब टखने की मूवमेंट को अंदर की जानिब करते हुए बाहर की जानिब निकालते हैं तो ये इवर्जन मूवमेंट कहलाती है। इसके बाद अनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर जो हमारे पास आती है वो है एंटीरियर। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इंसानी जिस्म के या किसी भी जिस्म के जो सामने वाला पार्ट होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, वो एंटीरियर कहलाएगा। पोस्टीरियर, यूज टू इंडिकेट द बैक ऑफ द बॉडी। इंसानी जिस्म के जो बैक वाला हिस्सा है, कमर वाला जो हिस्सा है हमारे जिस्म के, इंसानी जिस्म के, वो बॉडी का वो पोस्टीरियर कहलाएगा अनाटॉमिकली। पामर सरफेस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द इंटीरियर ऑफ हैंड। ये भी जिस तरह हमने प्रोनेशन और सुपिनेशन पढ़ा था तो वो भी इसी तरह के इंटीरियर ऑफ हैंड, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा हाथ का, वो इंटीरियर कहलाएगा। डॉर्सल, यूज टू इंडिकेट द पोस्टीरियर ऑफ हैंड, जो बैक साइड होगी हमारे हथेली की, फोर आर्मी की, वो डॉर्सल कहलाएगी। प्लांटर सरफेस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द इंटीरियर ऑफ फुट। जो हमारे पाँव का नीचे सोल है, जो तलवा है, वो प्लांटर सरफेस कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा जो है जहाँ पर मेहराब बनता है हमारे पाँव के नीचे। डोर्सल सरफेस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द पोस्टीरियर ऑफ फुट। पिक्चर शो दैट डोर्सल एंड प्लांटर सरफेस बोथ। एरो शो अ dorsal or plantar surface of the foot, posterior side and anterior side of the foot। उसके बाद है प्रॉक्सिमल, जिनके, और दूसरा है डिस्टल, करीब और दूर। अनाटॉमिकल टर्म के अंदर हमारे पास जो नई दूसरी चीज़ है वो प्रॉक्सिमल। इट डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द शोल्डर। एल्बो प्रॉक्सिमल है शोल्डर से। एंड डिस्टल इज, इट इज डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। रिस्ट इज
डिस्टल टू द शोल्डर। रेस्ट जो है हमारी वो एल्बो जॉइंट के ऊपर देखें और उसके ऊपर शोल्डर जॉइंट के ऊपर, और उसके बाद हम रेस्ट देखें वो दूर है, डिस्टल है, डिस्टेंस से देख लें कि वो डिस्टल है शोल्डर के। सुपरफिशियल एंड डीप, दे डोनेट द relative distance of structures from the surface of the body. Superficial and deep. अब जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर लाजमी करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।